Okay, good afternoon all, and welcome to Dumka Engineering College. And myself, Dr. Rahul Kumar, Assistant Professor in the Electrical Department. And again, all of you welcome to this college. And now, today, you know that this induction program is going on. And so, in this discussion, today we will discuss about the engineering. So, before going to the discussions of the engineering, let us some important points, some important valuable points in our life. All of you that students, I think here 13 and 14 students are joined now, and the departments in I think EE and mechanical engineering department. So I hope that all are you enjoying this induction program, and today is my session, that is the introductions of the engineering, because you are the now new steps, a new journey of your life just start from just admission in the BTech. So first you know the basic of these things. Actually, suppose you are doing engineering, but you know the basic importance of engineering. These are the very important terms. Actually, engineering mean just not like a machine. Means you are just completed BTech like that, and you just started a job and journey like that, but not like that. So here, first thing is that Satyendra Narayan, all of you, voice is clear. First thing is Yes, that sir. voice is clear, screen Yes, is sir. visible, screen is visible. Yes, ठीक है? yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. So okay. So all my dear student, one thing is that जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि आपकी इंजीनियरिंग हम लोग को करना है, आप लोगों ने एक बहुत ही जैसा कहते हैं ना कि एनर्जी, एक बहुत ही उत्साह के साथ में जो कहते हैं इनकरेजमेंट के साथ में आप लोगों ने एडमिशन लिया, +2, 11, 12 और जो भी सब लोग आप लोगों ने जो भी मेहनत किया, बहुत के मन में ख्वाहिश था, बहुत तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जेई मेंस, लेकिन आप लोगों ने क्वालिफाई किया जो भी है, ठीक है। अब बात आती है कि आफ्टर द एडमिशन, अब आप लोगों की एडमिशन हो गई है, अब ये जो हम लोग की स्टेज शुरू हो रही है, जो आप लोग का एक नया पड़ाव, द न्यू स्टेज इन योर लाइफ. So how to handle this, how to just means you explain like a engineering, you know that there are 8 semester, so many practicals, new subjects are here, but thing is that suppose आप बहुत सारे सेमेस्टर क्लियर कर रही है, रात दिन पढ़ाई कर रही है, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है, लेकिन क्या एक कंप्लीट इंजीनियर का मतलब जो होता है कि सिंपली क्रिएट करना, सिंपली हम लोग प्रैक्टिकल करना, सिंपली नॉलेज को गेन करना, या और कुछ भी हो, और इसके अलावा भी और कुछ है अदर देन दिस, सेमेस्टर्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, राइट अप, एनीथिंग, प्रोजेक्ट, और हम लोग का फाइनली हम लोग एक इंजीनियर बन गए। लेकिन वो इंजीनियर के साथ साथ में what are the impacts on your societies, what just you want to contribute in your society as a engineer, what are the moral ethics you just learn in this period. This is the 4 year, and 4 year, you know, this is the graduate degree, that is the BTech degree. So in 4 year, so how many things you just learn? Only the practical, only the experiment, or only the just book knowledge is the sufficient for the good engineer, or your impressions like the society, means engineer means not a builder, just a building, just a manufacturer, just a design a motor. I think so that engineer means you're just like a social people. What are your contribution in the society? आप क्या समाज में, सोसाइटी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है? आपने जो भी 4 साल का जो मेहनत है, 4 साल में जो आप लोग सेमेस्टर क्लियर करना है, इसके बाद जो आप लोग का एक जो छवि होता है, जिसको इमेज, आप एक सोसाइटी में जब खड़ा हो रहे हैं, तो आपके मन में क्या हो रहा है? आपको सोसाइटी में कुछ भी, आपके चाहे फादर, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके जो भी नेबरहुड है,
तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, दिस इज द रियल इंजीनियर। सो इंजीनियरिंग का जो बेसिक मीनिंग है, हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में तो समझेंगे ही, और साथ साथ सोसाइटी पे हम लोग का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इंजीनियर्स का, एक मोरल इथिक्स वैल्यू क्या होगा इंजीनियर्स का, वो सारे पॉइंट को मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जैसा कि मैं आज, जैसे कि आप लोगों का अभी जो भी क्लासेस जो भी स्टार्ट हो रही है, तो अभी हम लोग का जो इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सबसे पहले हम लोग समझें, हम लोग इन्वायरमेंट को समझें, हम लोग कॉलेज के इन्वायरमेंट को समझें। आप लोग एक जो एक न्यू इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ड्यू टू दिस कोविड एंड पेंडेमिक सिचुएशन, तो ठीक है, इससे भी हम लोग को, आप लोगों ने 11-12 भी पेंडेमिक सिचुएशंस में ही जो है कि पार किया है। सो जो भी सिचुएशन हम लोग का आया है, लेकिन हम लोग को नॉलेज तो लेना है हमेशा। लेकिन पहला बात तो यह है, हम सभी से कहना चाहेंगे कि पढ़ाई को जो इम्पोर्टेंस है, जिस वे में पढ़ना चाहिए, और मैं अभी जो फेस कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स के जो क्लासेस चल रही है अभी, मतलब बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। सो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बस मोबाइल को ऑन कर देना है और पढ़ाई कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि आप अपने आप से थिंक कीजिए कि अभी जो सिचुएशन है, यही तो सिचुएशन है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, we have a sufficient time to gain knowledge, everything is available in the Google, YouTube, everything. So how to improve your knowledge, आप अपने नॉलेज को कैसे इंप्रूव करते हैं? अभी अभी सपोज दैट अभी जब तक गाइडलाइन है आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, लेकिन इसके बाद तो ऑफलाइन क्लासेस होगी। सो आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन क्लासेस का मीन्स ये नहीं है कि जस्ट यू जस्ट अटेंड and you just join the Zoom classes or any text teachment classes and for the attendance purpose, not the for the attendance purpose। attendance purpose के लिए कभी नहीं ज्वाइन करना है। ये आप लोगों का एक लाइफ का बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें आप लोग का एक कैरियर, और यहीं से आप लोग का कैरियर, आप लोग जैसा चाहे अपना कैरियर को बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो आप लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा ही, लेकिन ये क्या है कि आप लोगों के साथ मेरा ये फर्स्ट इंट्रैक्शन है, ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट इंट्रैक्शन है, और इसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी है और मैकेनिकल के भी स्टूडेंट है। तो मेरा कहना यह है, तो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट तो मेरे से हमेशा से कंटिन्यू जब तक 4 साल जुड़े रहेंगे, और मैकेनिकल के जो भी है, ठीक है, हम लोग तो कॉलेज के जो भी एक ही इन्वायरमेंट में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में हम लोग का जो पढ़ाई का मीनिंग है, और बुक जो है कि पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ करना होगा, कुछ अपने लिए, कुछ सोसाइटी के लिए। और हम लोग सोसाइटी का मीन्स ये नहीं होता है कि बस आप मम्मी पापा और घर का अगल बगल सोच लिए, ऐसा कुछ करना है कि हम लोग का अपना कंट्री का भी कुछ हो। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि नॉलेज जो बात होती है नॉलेज की, सो ये नहीं कि बस आप बुक ही पढ़ रहे हैं और बुक का ही जो आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ही पढ़ रहे हैं और आपको ये बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, लेकिन नहीं, नॉलेज किसी भी प्रकार की हो, मीन्स कभी कभी कहते हैं शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। आपके पास जो भी टैलेंट है वो एक ना एक समय वो आपको मिलेगी। ठीक है, एक ना एक समय मिलेगी। और शिक्षा, जो हम लोग एजुकेशन का बात करते हैं, और सिंपली शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंख की जरूरत नहीं होती, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, और इसे रटने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये सब सारे कुछ कुछ पॉइंट है हमारे लाइफ में। और जैसे आप लोग अब इंजीनियरिंग में आइएगा, बहुत सारे कुछ कुछ टॉपिक सब्जेक्ट मिलेगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कुछ भी एक अच्छा बुक जब आप पढ़िएगा और कभी भी एक अच्छे इंसान से मिलिएगा, मैं एक सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर भी जब इंजीनियरिंग का बात आएगी तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी आएगी जो आप लोगों को कभी बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी, लेकिन उसको क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से ही हम लोग उसको कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जो है कि सेशन को स्टार्ट करूंगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में जो बेसिक थिंग है इंजीनियरिंग का, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बुक ये सब पढ़ने से ही हम लोग एक रियल इंजीनियर सोसाइटी में जो भी है आपके एक आइडियल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आप लोगों को एक इंजीनियरिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हमारे इंजीनियरिंग से हम लोग को प्रैक्टिकल टेक्निकली क्या क्या है, सारी चीज को मैं आप लोग को क्लियर करूंगा।
और मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोगों को लाइफ, ये जो स्टेज शुरू हो रहा है, ये स्ट्रगलिंग लाइफ है। आप लोगों को मेहनत करना है, रात हो दिन हो, आप लोगों को एक करके मेहनत करना है, और ये जो 4 ईयर कंप्लीट है, आप लोग को एक अच्छा और रियल इंसान बन के निकलना है। तो क्योंकि मैं एक, देखिए आप लोग एक वर्ड, एक सेंटेंस जानते होंगे कि सिंपल, जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं, ठीक है, संघर्ष, स्ट्रगल जिसको हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रगल तो लाइफ में है ही, ठीक है। और मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से, जिसने रातों से ही जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो लाइफ में हमेशा एप्लीकेबल होता है, और ये सब आप लोगों को समझना है, आप लोगों को सोचना है, और अपने लाइफ में ये सब को क्या करना है, समझ करके अप्लाई करना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग में जो हम लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि इंजीनियरिंग एंड व्हाट डू इंजीनियर्स डू एक्चुअली, इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स का क्या काम है, ठीक है। सो सिंपली देखिए, मैं आप लोग को एक स्क्रीन शेयर किया हूं, जैसे आप लोग उसको स्क्रीन को देख सकते हैं। सो साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज, यू नो दैट साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज, बट इंजीनियर्स क्रिएट द वर्ल्ड दैट हैज नेवर बीन। सो आप लोग इस लाइन पे एक इस महत्व को समझ सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियर्स इन आवर सोसाइटी। इंजीनियर्स का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? जस्ट म्यूट योर माइक्रोफोन ऑल ऑफ यू। One request to all of you, please mute your microphone, otherwise disturbing the class. So for the fruitful sessions or like that, just mute your microphone, be patient. Okay, so engineers create the world that has never been. आज हम लोग के लाइफ में, आप लोग चाहे आपके हाथ में अभी जो डिवाइसेस है, जो गैजेट्स है, आपके पास जो मोबाइल है, जो भी आप देख रहे हैं, जो ऐप है, आज हम लोग जो इतने कंफर्टेबल वे में वेट करके सारी जो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? This is the one of the creativity of the engineers. Creativity of the engineers. आज जो हम लोगों के पास इतनी सारी सोर्सेस, इतनी सारी चीज अवेलेबिलिटी है, ये क्या है? सब क्रिएटिव है, जो कि क्या है? इंजीनियर्स ने किया है, जो कि क्या है? एक इंजीनियर्स ने किया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इंजीनियर्स के बारे में हम लोग को समझना है, तो ध्यान से समझिए। आज हम लोग के पास क्या नहीं है, आज हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी हम लोग सोर्सेज, जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन लॉज, सबको एप्लीकेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइक दैट। सो नाउ सी हियर, दिस इज द प्रेजेंटेशन आउटलाइंस। सिंपल, वी विल डिफाइन द व्हाट इज द इंजीनियरिंग एंड हिस्ट्री बैकग्राउंड लाइक दैट, एंड मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एंड द इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग क्या होती है, एंड अदर ब्रांचेस, मैथोलॉजी, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कोड्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द रिलेशनशिप्स ऑफ द अदर डिसिप्लिन्स। ओके, सो देखिए, मैं तो बताया ही आप लोगों को कि इंजीनियरिंग का टेक्निकल क्या है, नहीं है, जो भी बुक मैनर में मैं जो बता रहा हूँ ठीक है। सो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? सिंपली द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिजाइन, just 1 minute, I'm just taking pointer. Okay. So build machine, structure, other items like a bridge, tunnel, road, everywhere you just seeing like a bridge, dam, machine, motor, vehicles, everything. So the disciplines of engineering encompasses a broad range of more specialized field of engineering, and each with a more specific emphasis on a particular area, like a mathematics, applied science, and types of applications. So बेसिकली यदि हम लोग अभी हम लोग टेक्निकली समझ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल भी जानना जरूरी है, तो इसीलिए जो इंजीनियरिंग वर्ड्स ड्राइव किया गया लैटिन, दैट इज द इंजीनियर, दैट्स मीनिंग क्लेवरनेस, एंड इंजीनियर मीनिंग्स टू कंट्राइव एंड डिवाइस। तो कुछ बेसिक मीनिंग है जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि एज ए इंजीनियर इंजीनियरिंग का मीनिंग भी तो समझना होगा। सो एक्चुअली यदि हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग क्या हम लोग अभी देख रहे हैं, आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, तो क्या यही हम लोग का इंजीनियरिंग है क्या? अभी यदि हम लोग यदि एंशिएंट टाइम में यदि जाते हैं, तो सबसे पहले यदि हम लोग इंजीनियरिंग का यदि बात करते हैं, सो एनीवन टेल मी, सो
कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोग का लाइफ में, हम लोग का जो एंशियंट टाइम में डिस्कवर हुआ था, जो कि अभी हम लोग का लाइफ में एक रेवोल्यूशन की तरह है? एनीवन? व्हाट डिस्कवर लाइक दैट? यू नो, दैट्स द विल. And one thing is that don't write anything here. Okay. So just wait. I am disable annotations. Hmm. Just wait 1 minute. So you like a wheel, pulley system, everything in ancient time. यदि हम लोग बात करते हैं, you know what it is? This is the pyramids in the Egypt. So one of the structure design you see the ancient times also the engineers like that. You know that like a Harappa Sanskriti, Mohenjo-daro like that. You know the structure like civil engineering. So now that ancient times also the engineering. Nowadays, you know the civil engineering like a bridge, a pool, everything is there. But you know the historical things like you know the Great Wall of China, Great Wall of China. So what you think? आप लोग को देख के क्या लगता है? इंजीनियरिंग का मतलब जो हम लोग अभी जो किताब पढ़ रहे हैं, तरह तरह के सेमेस्टर क्लियर कर रहे हैं, सो वो थिंग जो अभी हम लोग मॉडर्न इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, और जो एंशियंट और मिडिल एज तो ठीक है, जो एंशियंट टाइम का बात कर रहे हैं, सो आप लोग जो अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये सेमेस्टर को क्लियर करना और एक इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है? तो मैं अभी धीरे धीरे सारे पॉइंट आप लोग बता रहा हूँ कि सोसाइटी से लेके एक मॉरल एथिक्स इंजीनियर में क्या होना चाहिए। और मैं आप लोग को बार बार ये कह रहा हूँ कि 8 सेमेस्टर क्लियर करने से आप इंजीनियर पर डिग्री बीटेक ले सकते हैं, लेकिन एक रियल इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जो हम लोग हिस्ट्री, जो हिस्ट्रिकल बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यू नो द स्ट्रक्चर, एंड यू नो दिस टेम्पल आल्सो, so many temple, historical temples, and you know that structure, you think that how to build, how to manufacture that types of building without engineering, without the knowledge, without the any mapping, it is possible? No. So engineering means not like in here you are just doing degree like that. That time also the concept of engineering behind it. One of the very important things, see here in the old days is like the artillery. This is the one of the mechanical designs of the engineer that time also. And you know like after that the middle age like 1500 or to below 1800. So century like that. Here also the some of the basic machines, you know, see this is the what cotton or the one of the cotton gin that is invented by the India 6th century AD. So after that, you know, this is the you know James Watt the steam engine. So these are the middle ages. Some of the engineering concept, engineering technologies that was developed that time. So this is the beam engineering featuring James Watt, double beams. So you know now this is the ancient time, middle age, but now the modern engineering after the 1800, you know the revolutions of the devices like basically the semiconductor devices, you know the IC chips, transistor, diode. So these are the modern engineerings. और ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के कारण ही आज हम लोग के पास में क्या गैजेट्स नहीं है। और ये जो हम लोग धीरे धीरे जो एक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग का बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन लेके जो क्या है। तो देखिए एक्चुअली हम लोग मॉडर्न एंशियंट इंजीनियरिंग, यदि एंशियंट का बात करते हैं तो वहां भी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने यही कहा कि क्या हम लोग वहां पर उस समय के सेमेस्टर पर सेमेस्टर था क्या? उस समय का सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोर्सेस रहती थी 8 सेमेस्टर, जो इतनी स्ट्रक्चर बनाया गया। और हम लोग जो अभी मिडिल एजेस में धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी, जो एप्लीकेबल, जो लॉज हम लोग का आया, तो ये सारी चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नाउ
यदि आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, यदि इंजीनियरिंग का मेन ब्रांचेस किसको कहेंगे? जैसे तो हम लोग अभी बात करते हैं कि अभी यदि आप कोई भी कोर्सेज उठाते हैं, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इतने सारे ब्रांचेस मिलेगी आपको कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर कौन सा इंजीनियरिंग में करूं। तो आप लोगों के हिसाब से बताइए, जैसे आप लोग तो अभी जस्ट 11 एंड 12 पास आउट हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो दिमाग में आता ही है कि मेन ब्रांच, हम लोग ब्रांच को क्या समझते हैं, कौन कौन सा मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? सो अभिषेक कुमार, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि मेन ब्रांचेस, यदि आपसे कहा जाए कि मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग का क्या है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? अभिषेक कुमार, यस सर। तो बताइए आप क्या बता सकते हैं यदि आपसे पूछा जाए कि भाई मेन ब्रांच क्या है इंजीनियरिंग का, तो आप क्या बताएंगे? मेन ब्रांच। ये देखिए, आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप लोगों ने इंजीनियरिंग, आपने क्या सोच के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पहला चीज। ये नहीं कि बस मैं तो प्लस टू कर गया, चलो मैं इंजीनियरिंग बनने इंजीनियर कर लेता हूँ, बीटेक डिग्री ले लेता हूँ, कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सोच के इस इंजीनियरिंग फील्ड में आने के लिए सोचा कि हाँ ठीक है, वी जस्ट नाउ वी कंप्लीटेड बीटेक, वी गॉट ए जॉब, but okay, this is also clear. But now, what do you know about the engineering and what are the basic branches? बेसिक ब्रांचेस क्या है इंजीनियरिंग का? जब हम लोग ब्रांच का बात करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इंजीनियरिंग का कौन कौन सा ब्रांच को हम लोग मेन ब्रांचेस कहते हैं बेसिकली? चलिए बताइए, सर व्हाट आर द मैकेनिकल मेन इलेक्ट्रिकल। ब्रांचेस? mainly the core branches. So core branches, just to tell me what are the names of that branches? Actually हम Civil, लोग, electrical, हाँ mechanical, हाँ, minings not available in all the colleges, but it is the part of no, engineering. कोर ब्रांचेस मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, मेन इंजीनियरिंग का मतलब क्या करते हैं? यदि हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे, यदि हम लोग कहेंगे कि मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग तो क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जस्ट, हाँ ओके टेल मी। सर बिगेस्ट ब्रांच बोल सकते हैं मैकेनिकल और सिविल को, और सेकंड बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल को, सेकंड बिगेस्ट। ये तीनों ब्रांच सही है, यू आर करेक्ट आल्सो, दैट इज, बट यू नो दैट केमिकल इंजीनियरिंग आल्सो द मेन ब्रांचेस, chemical engineering is the one of the main branches. Actually there are 4 main branches, okay. So chemical engineering, civil engineering, electrical engineering and the mechanical engineering. So these are the 4 main branches of engineering, okay. आप क्लियर हो? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जनरली हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी क्या है। आज का हम लोग जो कंप्यूटर करते हैं, तो कंप्यूटर क्या मेन ब्रांच में आता है? हम लोग जो बात करते हैं माइनिंग भी मेन ब्रांच में नहीं आता। सर वो मैकेनिकल का पार्ट होता है। तो मैं अभी सारा चीज आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग का बीटेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है, एडमिशन हो गया आप लोग का, आपसे तो आप लोग सेमेस्टर में आ जाइएगा, सब्जेक्ट में अब आप लोग का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगी, आप सब कुछ पढ़ना शुरू कीजिएगा, जो भी फिजिक्स है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, बस उसी में इन्वॉल्व हो जाइएगा। सेमेस्टर क्लियर करना है, 4 साल आप लोग का कैसे बीत जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मोरल वैल्यूज को समझिए, इंजीनियर बनना है, क्योंकि आप लोग को ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। इसीलिए अभी हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में भी डिस्कस करते हुए जाएंगे, लाइफ का मोटिव हम लोग समझेंगे और कुछ मोटिवेशनल बात भी करेंगे, ताकि आप लोग 4 साल जो है कि आप लोग को एक एनर्जी मिलते रहे। आप लोग का ये 4 साल का जो पूरा कैरियर होगा, तो आप लोग बस जो हम लोग आज की जो सेशन होगी, इस सेशन से हम चाहेंगे कि आप लोग को ऐसा कुछ जानकारी मिले जो आप इंजीनियरिंग को भी समझें, एज वेल एज सोसाइटी को भी समझें, और मोटिवेशनल बात भी आप लोग समझें, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बस हम किताब पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने बात किया क्या है, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करते हैं, अब सिंपल सा बात, केमिकल इंजीनियरिंग। सो केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक मीनिंग क्या था? केमिकल इंजीनियरिंग, डेली लाइफ, यू आर ऑब्जर्व डेली लाइफ, सुबह से लेके दिन भर से लेकर के हम लोग कुछ भी चीज, चाहे अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, बात को
मीन्स फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का भी ऐसा चीज, केमिस्ट्री का भी ऐसा चीज, बायोलॉजी का भी ऐसा चीज। केमिकल प्रोसेस, हम लोग जो केमिकल प्रोसेस, जो कमर्शियल स्किल्स का बात करेंगे, चाहे आप केमिकल्स कमोडिटी का बात कीजिए, चाहे आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बात कीजिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस, यू नो दैट्स द एवरीथिंग, यू आल्सो होम, आप कहीं भी बात कीजिए, यदि केमिकल रिएक्शंस, एवरीवेयर इज द केमिकल रिएक्शन, everywhere is the chemical reaction. So chemical engineering means what? तो केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे आप बोले ना, रिफाइनरी है, हम लोग का फर्मेंटेशंस है, हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि माइक्रो फैब्रिकेशंस, जो हम लोग चिप्स का बात करते हैं, ऐसी चीज माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्निक, या फिर हम लोग बायोमोलिकुल्स प्रोडक्शंस का बात करते हैं। सो एवरीवेयर दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। So simply we can define what is chemical engineering. It is the application of physics, chemistry, and biology and engineering principles in order to carry out chemical processes on a commercial scale, such as the manufacture of what? Commodity chemicals, specialty chemicals, petroleum refining, microfabrications, fermentations, and biomolecule productions. केमिकल इंजीनियरिंग यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आप अपने सोच के देखिए, दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच। ठीक है, अभी हम लोग भले ही बात करेंगे कि आज आप लोग को पढ़ना है कंप्यूटर साइंस, आप लोग को पढ़ना है जो भी चीज है, लेकिन आप यदि बहुत पुराने जो 1940 उस समय के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, उस समय यदि फोकस कीजिएगा तो केमिकल, सिविल, यही सब ब्रांचेस जो थी कि आप लोग की पढ़ाई होती थी। उसके बाद धीरे धीरे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आना शुरू हो गया समय के अकॉर्डिंग हम लोग को जैसा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के साथ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग घुसा दिए, मैकाट्रॉनिक्स घुसा दिए, मैकाट्रॉनिक्स में सब कुछ आ जाता है, मैकेनिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, सब कुछ आ जाता है मैकाट्रॉनिक्स। सो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी जानना जरूरी है कि एक्चुअली ओरिजिनलिटी क्या है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है हम लोग का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोग, आप देखिए आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए इंजीनियरिंग क्या है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, यू नो द सिविल इंजीनियरिंग। जब सिविल का बात करते हैं तो यू नो जस्ट यू थिंक, यू व्यू, आपके दिमाग में बस पिक्चर आने लगेगा क्या, ब्रिज, डैम, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग लाइक सिविल इंजीनियरिंग, यही आता है दिमाग में। सिविल इंजीनियरिंग कह दिए मतलब दिमाग में एक चीज आ रहा है कि सो मेनी कंस्ट्रक्शंस, टनल, डैम, ओके और नॉट, मींस पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट, रोड, एवरीथिंग, रेलवे, वाटर सप्लाई, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बिना यू नो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। और जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया, जो कि एंशियंट टाइम में तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल तो नहीं था, यू नो, यदि हम लोग फोकस करें, क्योंकि आफ्टर दैट अलेक्जेंडर, वोल्टा, ये सब के आने के बाद ही हम लोग, फैराडे, ये सब के आने के बाद ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझा। लेकिन एंशियंट टाइम में यदि हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली क्या था, सिर्फ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, तरह तरह के कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, हर तरह के, जो कि हम लोग जानते हैं कि तरह तरह की, आप लोग देखेंगे जो फोर्ट है, तरह तरह का फोर्ट, किला जो बात करते हैं, वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, डिजाइन। So think about that. Now today, so many machinery systems is there, so many electrical equipment is there, so many cutting tools is there. But now ancient time, you think about. So now today, the civil engineering, यदि सिविल इंजीनियरिंग का बात करेंगे, just mute your microphone all of you first. अंकित आनंद। So सिविल इंजीनियरिंग को आजकल बेसिकली इसको भी सब डिसिप्लिन में हम लोग कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली यदि आप लोग अभी जो है कि न्यू है, नहीं पता होगा, जैसे कि मैं याद आ रहा कौन सा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आल्सो सिविल इंजीनियरिंग इज सब कैटेगराइज्ड एज environmental engineering, okay, and also one of the last one that is the surveying. तो सिविल इंजीनियरिंग को भी 3 पार्ट में बांट चुका है, ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, ठीक है। सो एक्चुअली ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो भी है सब डिवीजन तो अभी तो हो ही रहा है।
अब कंप्यूटर साइंस भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस तो ऐसे ही इंटरडिसिप्लिनरी में था, अब कंप्यूटर साइंस में भी 10 से अधिक ब्रांचेस आ गया, ठीक है। तो वो ठीक है, कॉन्सेप्ट जो भी है हम लोग को। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बेसिकली क्या समझे, सिविल इंजीनियर सिंपली, जैसे भी हम लोग बात करें तरह तरह की जो कंस्ट्रक्शंस है, रोडवेज है, तरह तरह की जो हम लोग टनल्स का बात करते हैं, जो डैम्स का बात करते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर बेसिकली द सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग इज द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क such as infrastructure, airport, roadways, railway water supply, treatment, anything, and bridges, tunnels, dams, building, and also already I have told that the civil engineering is also subdiscipline like structural, environmental, and surveying. Okay, this is clear, all of you? All of you clear ना? Clear हो रही है आप लोग को? समझ में आ रहा है? Yes, और sir. the session is not a feel like a boring ना? Session boring नहीं ना लग रहा है? ऐसा नहीं है No, कि sir. सर क्या बता रहे हैं आज, ठीक है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये इंडक्शन प्रोग्राम है, आप लोग फेस टू फेस रहते तो बहुत ही अच्छा था। ये जो भी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग को तो अपना वर्क करना है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी है हम लोग करेंगे, और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आप लोग को ऑनलाइन ही है भले, लेकिन हर चीज को इंटरेक्शन करे, आपसे भी इंटरेक्शन हो और सबसे, और धीरे धीरे क्लासेस जब चलेगी तो ऐसे तो इंटरेक्शन हो ही जाएगा आप लोगों से। सो अभी मैं सबसे इंट्रोडक्शन करना ठीक नहीं है, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पूछूंगा मैं उससे बात करते जाऊंगा पैरेलली, ठीक है। तो शिवम कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह ऑडिबल, शिवम कुमार सिंह, सुब्रत मंडल, सुब्रत मंडल, Yes, sir. तो सुब्रत मंडल बताइए, आप जो इंजीनियरिंग मतलब आए हैं तो आपने क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका मतलब जो होता है ना कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने जो इंजीनियरिंग को चूज किया है, तो मतलब आप इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए, शेयर कीजिए, मतलब आपको ये क्या मतलब इंटरेस्ट, मतलब होता है ना कि एक होता है प्रेशर होना घर से, एक होता है कि नहीं हमको कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ क्रिएटिव बनना है लाइफ में, तो आप क्या सोच करके मतलब इस इंजीनियरिंग ऑप्शन को चूज किए लाइफ, जस्ट शेयर। सोचे तो है कुछ क्रिएटिव करना है, अभी तो फिलहाल मतलब अभी ऐसा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आगे कुछ अरे सोचेंगे। अभी तो अभी कर नहीं पाए, मतलब अभी मैं तो जान रहा हूँ कि फ्यूचर जैसे होता है ना कि हाँ मैं ये चूज किया हूँ, मेरा ये मैं चूज किया हूँ इस ऑप्शन को, तो एक होता नहीं कि सोच करके आना कि यार मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया हूँ तो कुछ अच्छा करूंगा इसमें, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज द इंट्रैक्शन प्रोग्राम, तो एक्चुअली जानना जानना है आप लोगों से, व्यू जानना है कि क्या सोचे हैं। अभी हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग का जो तुम लोग युवा फ्यूचर हो हम लोग का कंट्री का, तो जाना तो जरूरी है, पढ़ाई तो करना ही है। So okay, now this session is Zoom is completed now, the 40-minute session. So immediately join. Okay, I am now just here stop this session, and now all of you join again. All of you join again. Yes. Sir, link यही रहेगा। Same link, join again, same link.